Namaste and welcome to yet another show of Krishi Jagran presents Chai with Payal. As you know that in Krishi Jagran, we are now celebrating entrepreneurs to make your lives an example of success. But today is different. वो कहते हैं ना, हर सक्सेस का रास्ता पेट से होकर गुजरता है. तो आज हमारे साथ है एक बहुत ही जाने माने सेलिब्रिटी शेफ निशान चौबे. शेफ चौबे के बारे में मैं क्या ही कहूँ, जितना कहूँगी कम है. फिर भी कुछ इंट्रोडक्शन की लाइंस आपको बताती हूँ. He is a chef who definitely needs no introduction. He is a consulting chef for Indus Plated Bangkok, chef's partner with Satvik Delhi, corporate chef Senyan Group Tokyo, consulting chef Mesa Kiss and Fly Goa, Cube Indian Kitchen Sydney, Limesh Kuala Lumpur, Rani New Jersey is his latest edition, and many more in Bangalore, Canada, Japan, South Africa. थोड़ी देर में ऐसे होगा मैं हर कंट्री का नाम ले लूंगी. So मैं और समय नहीं लेते हुए मैं आपको अब इंट्रोड्यूस करती हूँ the star himself, Michelin plated chef Nishan Chaube. Chef, welcome to our show. Thank you and we very are much, so honored to have you on our show today. पूरी जनता ये इंतजार कर रही है कि जो आप एक राजा हो और आपके नाम पे जो ये रानी जुड़ा हुआ है, इसके यहाँ से हम शुरुआत करते हैं आज की शो की. Thank you very much, Payal, for having me over in this lovely show. और I've been watching the show actually, and I'm absolutely very proud that you are doing so well. And I think I'm gonna reveal all my secrets of what I have been doing so far and what I am doing and what are my future programs. But of course, people who are listening to us do look at it because there'll be a lot of tips and hacks and about our hotel management. I think people do question that what is so good about it, what is not good about it. So I think I'm gonna reveal a lot of that. So yes, we are all waiting to reveal your secret. But उससे पहले हमने तो बचपन से यही सुना था, never trust a skinny chef. What's the secret of your health? हमने जितने भी chefs देखे हैं, chefs earlier used to be all very healthy. You mean I understand how I'm talking healthy, but आजकल chef विकास खन्ना आपको देखते हुए वो कहावत पुरानी हो गई है. How do you all maintain your health in the Yeah, food it is industry? very important to be healthy. जो health, I mean, जो fit है, वही hit है. I think that's the example of what we perceive. I think Chef Vikas also follow the same principle. We work hard and we eat according to our total metabolism, which is very important. And we don't eat too much, we don't eat too less as well. And of course, we eat clean. I mean, that's the success mantra when you actually talk about health. And I think it's about my gene. My dad is also the same thing. So I think because of that, I'm slightly okay. I'm okay. Yeah. You're not okay. You are actually perfect. So जो हमारे दर्शक है, अगर उनमें से कोई नहीं जानते, he is also known as the heartthrob chef of India. हर लेडीज के दिल धड़कता है जब वो शेफ निशान चौबे को किसी शो में देखती हैं. So शेफ, आपने जैसे कहा jeans and eat clean, तो अब jeans तो हम बदल नहीं सकते. Yes, right. We will all try to adopt eat clean. Absolutely. Yeah. Now chef, going back when you were in your school, when you were a child, आपकी फैमिली में क्या कोई और फूड इंडस्ट्री में है या कोई और शेफ है? Yeah, unfortunately not. I mean, the place where I come from, we have a different way to think about hotel management. और आज से मैं करीबन 23-24 साल पहले की बात करता हूँ कि उस टाइम शायद ही कोई होटल मैनेजमेंट करता था. I think that was the least found option. And I think no one in my gene is thinking also or have ever done hotel management. I think it came just by default, and I think I was carried away a bit to start it, with my line, because I could not get through my engineering exam. As usual, every parent want to see. I think this is the same principle and this is the same thing for every chef. That it was, veteran chef I'm talking about. But the new age chef are very different. Now they have this first choice because, being a chef is a pride. Being chef is very respectable. It is also giving very handsome financial services too. Now the chefs are running a lot, and if you look at any kind of platform, be it online or offline, you'll always find chef there. Okay, so I think it has scooped up big time, and I look back my journey. It was not very great to start, but there was no looking back to, because as a middle class
parents, my family can only give me this kind of, financial work, financial thing. So, but yes, I encashed it. I was in the kitchen, why I was in kitchen also, there's a thing behind it that I really wanted to not talk to people, kind of. I was very shy to start. I mean, that is exactly why I choose kitchen. And but yes, I mean, I saw this thing that, this place is very creative, and I think I follow the same mantra that, creativity is very, very important in life. And I created a little the niche for myself, and I think we have a long way to go. अभी करियर कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है। आपका करियर तो अब बोलते हैं, हम खुद रोज देखते हैं आप कितनी नए इनोवेशंस करते हैं। जो आपने कहा बहुत सही कहा कि कभी-कभी इंसान छुपने के लिए कुछ ऐसा करता है जो अल्टीमेटली जाके उस छुपने की वजह से वो दिखने लगता है। बिल्कुल। So, आप जो किचन में छुपे थे, उस किचन ने आपको पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। Seriously, I mean, I was not very good in my spoken, and I was always like, ठीक है, we are very studious, okay? हमें पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, but when it comes to, talking to people, when it comes to showcasing those, those amazing stuff, it is very difficult. But in hotel management, or when you become chef, or when you are part of F&B industry, it is very, very important to showcase what you have done. Otherwise, it is incomplete. It is not complete if you are not communicating the same to the dear customers or the guests who come to your restaurant. Very well said, Chef. Chef, there is a saying, there is a very thin line between a good chef and a great chef. बिकॉज हमने जब ये शो की शुरुआत की, आपने कहा था बहुत सारे टिप्स आप देंगे। Correct. तो जो आज शेफ्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप ये बताइए वो गुड टू ग्रेट कैसे बन सकते हैं? या गुड टू ग्रेट सबसे इम्पोर्टेंट है, दो तीन चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले तो बेसिक इज द की। ओके, पहले आपको सीखना होगा। कॉलेज आपको 3 साल सिखाएगा, 3-4 साल सिखाएगा, बट आफ्टर दैट डोंट थिंक दैट यू विल स्टार्ट गेटिंग 6 figure सैलरी। And I mean, you still have to work, man. I'm telling you, you have to work, and you have to definitely go through all those, प्याज छिलना, आलू छिलना, वो एक्सरसाइज करो आप। मेरे हिसाब से आप करो, उससे आपको आपका एटीट्यूड सही आएगा, आपको सीखने का एक तरीका समझ में आएगा, और कैसे, when you become boss in your kitchen, you should know every nitty-gritty what happens. So it is very, very important, mindful to start from, the junior most position, and then surge ahead. It will always make you good chef. It will always ensure that you have great confidence. Second, कि आप जो मैंने पहले बताया, कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कि आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में। थर्ड, टीम वर्क। एक ओबरॉय का एक रूल है, उसको बोलते हैं हैट्रिक, ओके, विच समराइजेज द एंटायर थिंग इन योर लाइफ। ऑनेस्टी, एटीट्यूड, टीम वर्क, commitment, innovation, knowledge. So that's hat trick. अगर आपको ये टोटल आपका, if it is right, then you are gonna be 100% successful. Give yourself time. Don't be in rush. कुछ हमारे लाइन में रश नहीं होता, जिससे रील बनाने में जल्दी रील बनता है, लेकिन हमारे में अगर कुछ चीज को पकने में समय लगेगा तो लगेगा। You can't help it. So adopt, improvise, learn, move forward. Never say no. That is very, 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 very important. Overall, मैं आपको ये बोलूँगा, attitude सबसे important, अच्छी attitude सही होना चाहिए। If you have correct attitude, और एक बात आप हमेशा सीखो कि जब भी आप किसी सीनियर के पास जाओगे, आप बोलो कि मुझे कुछ नहीं आता। Go with a blunt mind and learn as much as possible. Even if you know, say, sir, I don't know. Please teach me, and he would be more than happy to make you a good chef in your life. And be thankful. Be compassionate. Very, very important. I think these are the words that if you imply in, you are never complain, and you should never be happy with your own dish. If you ask me, जब मैं कुछ बनाता हूँ वो बहुत अच्छा भी होता ना, तभी मैं लगता है यार थोड़ा सा तो रह गया लगता है। तो वो इम्पोर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। Nothing is bad. Social media is not bad. There is no problem in watching what other people are doing. You can always take inspiration from them and make your life easy. Now, with social media, I can look at what other chefs are doing abroad, जो नहीं possible था पहले। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से उन चीज़ों का यूज़ करते हैं।
मैं ये कहूंगी, ऐसा लग रहा है इस एपिसोड में जो भी एस्पिरेशनल शेफ्स या होटल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं वो यहाँ से एक बोलते हैं मिनी होटल MBA करके जाएंगे। एब्सोल्युटली, इतने अच्छे टिप्स शेफ आप सबको दे रहे हैं। ये बच्चे जो आजकल, जो आपने कहा ना डोंट बी इन अ रश, आपने हैट्रिक कहा, तो ये सारे जो आप दे रहे हैं बच्चे अगर इस वीडियो को देखेंगे और इसको देखकर अगर वो चाहेंगे, लोग सक्सेसफुल लोगों को देख के सोचते हैं वो ऐसे ही आ गया, उनके पीछे की जर्नी नहीं देखते हैं। सो थैंक यू शेफ इतनी अच्छी टिप्स देने के लिए। इनोवेशन आपका एक कोर है, आप जो डिशेस बनाते हैं बहुत डिफरेंट होती है। सो हाउ डू यू कीप इनोवेटिंग ऑल द टाइम, बिकॉज हर इंसान की थॉट का एक दायरा होता है, बट आपने, मैंने देखा है हमेशा मैं जब भी आपके सोशल मीडिया को देखती हूँ आप कुछ नया करते रहते हैं। So how do you do that? I think I'm blessed that I'm mentored by Dr. पुष्पेश पंत जी। वो एक बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन है मेरे लाइफ में। और सर का जब कॉल आता है या सर की जब एक्सपेक्टेशन होती है तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें अपना क्या ला सकता हूँ। That's exactly what I say. See, I mean, if you look at, say एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो आप पनीर टिक्का ही ले लिए, जो कि बहुत इट्स अ नाइस डिश। आई लव पनीर टिक्का एनी डे इन माय लाइफ। अब उसमें निशान चौबे का क्या है, वो सवाल मैं अपने आप से पूछता हूँ और फिर मैं उस डिश को डीकंस्ट्रक्ट करता हूँ, तोड़ता हूँ उस डिश को और तोड़ के फिर उसको मिलाता हूँ, फिर उसको प्रेजेंट करता हूँ। तो मुझे हर एक पॉइंट पे मुझे वो चीज प्रूव करना होता है कि व्हाट इज निशान चौबे डूइंग हियर, एंड आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि आप किसी भी चीज को सीखो और उसको अपना बनाओ। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डू। आई थिंक आई एम डूइंग स्टफ इन दैट वे। हैविंग सेड दैट, मैं हमेशा, जैसे हमारे आयुर्वेद में कहा गया है, जो 6 सेंसेस है खाने के, स्वीट, सावर, एस्ट्रिंजेंट, बिटरनेस, स्पाइसीनेस, सॉल्टीनेस, और एक और सेंस अभी ऐड हो गया जिसको बोलते हैं उमामी। तो उन सेंस का यूज करता हूँ। और हमारा जो खाना है इंडियन फूड, बीइंग एन इंडियन, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड, आई एम ऑनर्ड दैट आई एम एन इंडियन। और हमारे खाना तो एक जन्म में आप सीख भी नहीं सकते, इतना ज्यादा खाना है हमारे देश में। तो उतना अपॉर्चुनिटी है आपको, आपको शोकेस करने का वर्ल्ड को। इनफैक्ट रानी, द वन दैट आई क्यूरेटेड जस्ट नाउ, इट इज ब्यूटीफुल द वे आई हैव डन द फूड। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। पनीर टिक्का में केले के पत्ते में बंद करके उसको सामने टॉर्च करता हूँ। लोग ये बोलते हैं, अरे निशान साहब आप तो इंस्टाग्राम में के लिए कर रहे हो। हाँ, मैं कर रहा हूँ, बट देयर इज ए वैलिड रीजन, बिकॉज बनाना लीफ के अंदर होता है प्रोफेनॉल, और वो एक ऐसा पिगमेंट है जो कि बहुत हेल्दी होता है। और हमारे खाने की अगर आप टोटल खाने के बारे में देखोगे तो केले के पत्ते में खाया भी जाता है, पकाया भी जाता है। सो वी ऑलवेज से दैट एवरीथिंग व्हाट यू पुट ऑन द प्लेट शुड बी एडिबल, बट यस, केले का पत्ता एडिबल नहीं है, बट दिस पिगमेंट रिलीज होता है जब आप गर्म करते हो उसको। तो इसमें क्या होता है कि जब मैं उसको टॉर्च कर रहा होता हूँ गैस के सामने, तो समहाउ मैं क्या करता हूँ, उस पिगमेंट को रिलीज करता हूँ और वो खाने के साथ मैच होता है। और कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिशन, वो एंटीऑक्सीडेंट, वो मिनरल्स, वो फाइबर, वो सब चीजों को आपको देता है। तो समहाउ फूड इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट हेल्थ। Absolutely. And since we say that in this show, Chai with Payal on कृषि जागरण, शेफ, हम इस एपिसोड में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जर्नी को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपकी एक जो जर्नी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जर्नी है। करेक्ट। एंड आपने कितना अच्छा मैसेज दिया, डीकंस्ट्रक्ट करके कंस्ट्रक्ट करना। रिकंस्ट्रक्ट। लाइफ में भी वही है, अगर हम अपने आप को पहले 1-2 कदम पीछे लेंगे, बैठ के सोचेंगे, ऐसे वीडियोस देखेंगे, सक्सेस के प्रिंसिपल सीखेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। वेरी नाइस शेफ, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर ऑन आवर शो। थैंक यू वेरी मच। एंड मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। केले के पत्ते के इतने बोलते हैं ना गुड क्वालिटीज, जो the meaning is that जब जो हमारे खाने के बारे में बनाया गया है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। There is sensible reason behind it. Only thing is that we need to explore it. शेफ, जब आपने ये आपकी बातें शुरू की थी, आपने एक लाइन कही थी 23-24 साल पहले कोई इतना होटल मैनेजमेंट नहीं करता था। मुझे याद आ रहा है एक शब्द, बावर्ची। पहले बोलते थे ना कि बावर्ची बनोगे और कुछ नहीं बन पाए तो क्या बावर्ची बन जाओगे। Correct. तो क्या आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जब किसी ने बोला कि अरे यार शेफ आज बहुत ग्लैमरस जॉब है, लोग बहुत हाईलाइट करते हैं इसको, बट किसी जमाने में बावर्ची को इतनी तवज्जो नहीं देते थे, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यार मतलब क्लियर है, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो बावर्ची के साथ ही कनेक्ट था।
ठीक है, अब शेफ हो गया है। सही बात। लेकिन मतलब मेरे लाइफ में भी बिल्कुल सेम चीज हुआ है कि मेरे पेरेंट्स और हमारी जनरेशन कुछ जानती नहीं थी उस टाइम। मेरी फैमिली में कोई, मेरे पूरे शहर में, पूरे स्टेट में ओनली अ फ्यू आई थिंक। तो मुझे भी इसी तरह का सुनने को मिला कि बावर्ची बनेगा क्या, और अपने घर में ही खाना बना लो, इससे बढ़िया तो वही अच्छा होता। तो लाइक दैट। बट ठीक है, कॉलेज भी जब मैं गया तो कॉलेज वाज अगेन अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट, कि मैं कहाँ थर्ड टियर सिटी से आया, और वो भोपाल वाज द फर्स्ट टियर सिटी काइंड ऑफ। सो वी हैव लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम दिल्ली एंड ऑल। सो वो आते थे तो उनका एक चार्म अलग होता है, एक हमारा एक अलग होता है। तो वहाँ भी बहुत स्ट्रगल है यार। स्ट्रगल तो राइट, आई मीन इट वाज देयर। आई मीन आई डोंट नो हाउ मच कैन आई टेल यू। मतलब हैड आई मतलब I would have taken you back to that moment, then you would have realized. But of course, but struggle was the way for success in life. I think it is important to struggle and then find the real honey of success. Very true. बोलते हैं ना, रिस्क है तभी इश्क है। तो रिस्क से इश्क कर लो तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। तो हर शेफ की अपनी एक कुकिंग स्टाइल, अपनी एक पर्सनालिटी और फिलॉसफी होती है। तो आपकी कुकिंग स्टाइल को आप क्या बोलना चाहेंगे? या मेरी कुकिंग स्टाइल, मैं बहुत इम्प्रोवाइज कुकिंग करता हूँ। और चूंकि आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव वर्कड इन इंडियन, यूरोपियन, जापानीज, स्लाइट बिट ऑफ अफ्रीकन एज वेल। और मैं ट्रैवल बहुत किया लाइफ में, और ट्रैवल इज एन इन्वेस्टमेंट इन माई लाइफ। अगेन पीपल आर वॉचिंग अस, ट्रैवल इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जब आप टच करते हो किसी चीज को, तब आपको उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप, जैसे हमारे देश में ही अगर आप ट्रैवल करते हो, हमारे, आई ऑलवेज से दैट यू कांट सी इंडिया इन वन लाइफ। इंडिया में इतनी सारी चीजें, तो अगर आप जाते हो, आप फॉर एग्जाम्पल आपने मिर्ची पकौड़ा सुना, जब तक आप जाके उसको खाओगे नहीं, तब तक आपको उसके बारे में नहीं समझ में आएगा। आई स्टिल गो एंड आई स्टिल टेस्ट इट, टच इट, फील इट, और उसके बाद सोचता हूँ कि अब मैं इस चीज को कैसे बनाऊं। तो मेरे हिसाब से मेरा क्विजीन बहुत इम्प्रोवाइज्ड है। अब मैं किसी क्विजीन के, हर एक क्विजीन के साथ इंस्पिरेशन लेता हूँ। बट हैविंग सेड दैट, आई एम एन इंडियन, आई लाइक टू मेक बिरयानी देन रिजोटो, ऑल्दो आई नो हाउ टू मेक रिजोटो। सो मुझे लगता है कि मैं अपने क्विजीन को ही आगे लेके जाऊंगा तो अच्छा होगा। और नॉट ओनली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, बट आई गो टू पैन इंडिया, I go to south, I go to east, I go to west. There's so much more that we can showcase, and it is actually paying great dividend in my life. Awesome, chef. शेफ, जो आपने कहा इम्प्रोवाइज्ड कुकिंग, आप एक पनीर टिक्का को भी लेके एक नए तरीके से करते हैं। एंड सक्सेस डजंट कम इजी, सक्सेस के साथ क्रिटिसिज्म भी आता है। तो आपके लिए भी होता होगा, लोग आपको क्रिटिसाइज भी करते होंगे कि क्या तुम एक नॉर्मल डिश को नहीं, अभी मैं आपको क्रिटिसाइज अभी तुरंत बता देता हूँ। सो आई लुक एट द एंटायर ट्रेंड। ऑल्सो मैं अपने आप को ट्रेंड के अनुसार चेंज भी करता हूँ। ओके, एंड आई डोंट थिंक सो आई फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दैट। अभी वेजिटेरियन कुकिंग का आप देखो बहुत ज्यादा, इनफैक्ट अभी आई जस्ट केम बैक फ्रॉम रानी, and Rani also we are serving more vegetarian dishes than non-vegetarian. I mean, lot of expat, they are telling that we eat vegetarian, vegan, this kind of. So health बहुत बड़ा एंगल है, और उसकी वजह से मुझे लगा कि अब वेजिटेरियन में क्या करना है। और वेजिटेरियन में कुछ चीजें हैं जो नहीं हुआ करती थी, जैसे वेज बिरयानी नहीं हुआ करता था, और तो उसको बनाया गया, वो बन रहा है, चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। उसी संदर्भ में there's a dish that I created was kathal ki nihari. So there's a very renowned personality, I don't want to name here. Okay, so there's a very renowned personality. I tweeted, then Dr. Pant retweeted as usual, and it was very amazing. Same flavor as nihari. So I got retweet from very renowned personality. She's an NDTV anchor. She wrote saying that जो कटहल की निहारी बनाएगा वो नर्क पे जाएगा। Okay, so this is the kind of criticism we get. But ठीक है, that's all right, that's okay. It is her viewpoint. Correct. Because those robust dishes, अगर आप नासी गोरेंग देखो, चाहे आप निहारी देखो, चाहे चपली देखो, चाहे बिरयानी देखो, वो बहुत रोबस्ट है, लोग उससे बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं। I respect that, but ठीक है, we are chefs, we are creators. देखिए, तो यही मैंने शेफ आपसे ये सवाल क्यों पूछा, क्योंकि लोगों को लगता है कामयाबी अकेले आते, कामयाबी कभी अकेले नहीं आते, वो अपने साथ क्रिटिसिज्म, प्रॉब्लम्स भी लेके आती है। और ये जो आपने बात कही कटहल की निहारी, शेफ मैं बचपन से वेजिटेरियन हूँ,
मैंने निहारी का हमेशा नाम सुना बट जिंदगी में कभी खा नहीं पाई क्योंकि मुझे नॉन वेज नहीं खाना था। मतलब थैंक यू फॉर पीपल लाइक मी एंड देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर वाचिंग दिस शो टुडे। तो अब हमें ये बताइए शेफ, ये कटहल की निहारी हम कहाँ खा सकते हैं? मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतनी हम खाने की बातें कर रहे हैं। कटहल की निहारी आप स्ट्रीट स्टोरीज बैंगलोर रेस्टोरेंट वहाँ भी खा सकते हो। आप सात्विक किचन वहाँ भी खा सकते हो। अगर आप अगर न्यू जर्सी जा रहे हो तो वहाँ पर कटहल की निहारी हम लोग भिंडी के कुरकुरी भिंडी के साथ सर्व कर रहे हैं और उसके साथ निहारी के लिए न्यू जर्सी तो मैं नहीं जा पाऊंगी फिलहाल मैं यहाँ दिल्ली सात्विक में ही प्लीज आप खा सकते हैं। एंड आप भी जरूर जाइए। अगर आप बैंगलोर में हैं तो स्ट्रीट स्टोरीज बैंगलोर में जाइए, अगर आप दिल्ली में हैं तो सात्विकों में जाइए। एंड हमारे जो ऑडियंस हमें यूएस बैठ के देख रहे हैं, रानी इज द लेटेस्ट एडिशन टू शेफ्स कलेक्शन in New Jersey. Please go and try the dishes which are curated by chef. हम बहुत लकी हैं कि शेफ जैसे ही इंडिया लैंड किए हमने इनको पकड़ लिया कि शेफ हमें तो इंटरव्यू। Thank you very much. I'm glad that I'm here, Payal. And Rani also, you know, there's so much written about kings, and hardly anything written about queens or you know princes and all. उसमें लक्ष्मी बाई भी है, उसमें जोधा भाई भी है, तो उनके डिशेस हम वहां पर दे रहे हैं। और वी हैव रानी बट थोड़ा यू नो मॉडर्न फॉर्म ऑफ रानी का डिस्प्ले किया गया है, लेकिन उनकी जो फेवरेट उनके तो रानी लक्ष्मीबाई और महाराणा प्रताप के किचन में दाल बाटी चूरमा बनाया करता था, तो वो दाल बाटी भी है वहां पे, लोग दाल बाटी भी सर्व कर। सो वी आर यू नो वी हैव टेकन लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम द डिशेस फ्रॉम द रॉयल किचन ऑफ रानी एक्चुअली। शेफ, मैं एक रूल बनाने वाली हूँ, नेक्स्ट टाइम मेरे शो में कोई भी शेफ आएगा मैं थोड़ा खाना पहले मंगवाऊंगी उनसे बिकॉज खाने की बातें करते करते मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, बट आप लोग पूरा एपिसोड देख के जाइएगा खाने के लिए। शेफ, बात करते हैं ये जो टेक्नोलॉजी आज के डेट में हर जगह, जैसे सोशल मीडिया का अपना एक रोल आ गया है टेक्नोलॉजी। सो फूड इंडस्ट्री में हम देखते हैं रोबोट्स खाना सर्व भी कर रहे हैं, मशीनें खाना बना भी रही है। सो इस पूरे चीज को देखते हुए आप क्या बोलते हैं, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ फूड इंडस्ट्री विद टेक्नोलॉजी? नो, आई थिंक गुड, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। टेक्नोलॉजी प्लेज वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट इन आवर लाइफ। जैसे हुआ था अब हो रहा है और आगे चल के होगा, तो उसमें टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, जिसमें कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ आवर बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं, बाद में क्या होता है कि वो धीरे धीरे उसका यू नो टेस्ट, उसके SOPs, उसके टोटल रेसिपी चेंज हो जाता है। उस जगह पर AI विल प्ले ए वाइटल रोल। दैट्स व्हाई एग्जैक्टली आई एम वर्किंग विद Unox as an oven company, and it is showing such amazing result in my life. I can't even tell you. There's a video calling that I can do now with the machine. I am somewhere else, I can talk to the machine, say that you do this, and the machine will cook for me. Having said that, थोड़ा सा डर भी है कि इसमें मैन पावर कम हो जाएगा, हो सकता है एम्प्लॉयमेंट थोड़ी कम हो जाए, ठीक है, लेकिन ठीक है, फिर भी वो वीडियो कॉलिंग करने के लिए आदमी तो चाहिए ना। टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी तो वीडियो कॉलिंग होगा नहीं। So I think it is gonna play a very very important role. So आप लोग जो ये एपिसोड देख रहे हैं, आपने देखा कि कैसे एक शेफ के साथ इंटरव्यू में आप आने वाले ट्रेंड्स को भी समझ सकते हैं। That is why I always say that whatever industry you want to get into, please go and watch videos, podcasts and interviews that are taken on such topics by people in this domain. So शेफ, आगे चलते हैं। बहुत सारे खाने पीने की बात हो गई, टेक्नोलॉजी की हो गई, अब कुछ आपकी निजी जिंदगी के बारे में जानना definitely, please. Tell me about your personal life, because आप इतना ट्रैवल करते हैं जैसे कि आपने कहा, तो आप जब ट्रैवल करते हैं तो आपकी फैमिली डेफिनेटली आपको मिस करती होगी, तो उसको आप कैसे बैलेंस करते हैं? Yeah, when I'm at home, I'm at home. When I'm at work, I'm at work. I think this is also very important कि जब आप never look at family when you are working and never look at work when you are with family. That's very very important. I think that's what I do. When I am with them, I am with them. When I am out, I am out. So जितना देखो आप काम करने तो जाते ही हो, वो everyone you know goes out to work. You have to earn your you know bread and butter for your family. So this is exactly what I think. I am not doing anything new, but yes, from the last year it is slightly you know more travel for me. I'm actually living out of my suitcase, so which I'm gonna curb a bit. I'm gonna give more time. और देखते क्या होता है, बट ठीक है, गॉड इज काइंड दैट आई एम गेटिंग वर्क एंड बिकॉज ऑफ मी देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर गेटिंग वर्क, सो इट इज इम्पोर्टेंट. इफ आई डोंट डू इट, देन यू नो माय बॉयज विल आल्सो नॉट कम टू get their you know share of luck. So
important for us to be role model for everyone, and for that we have to keep working hard. And every day is a new day in my life. Whatever we have done in our life is zero when we start a new place. It is as simple as that. It is not that for any chef. It is not that. Even if you look at Chef Vikas Khanna today at Bangalore, he's still working the same way what he used to work, say, in like 3 decades before. He's still starting fresh. So it is pressure, but that's what it is. नहीं, कितनी अच्छी बात कही शेफ आपने। और आपकी बात पे मुझे ना एक मूवी का डायलॉग याद आ गया। आई थिंक बद्रीनाथ की दुल्हनिया में था, बोलते हैं ना, काम ऐसा करो कि काम पे जाने का मन करे। Correct. और घर ऐसा हो कि घर आने का मन करे। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है। तो जैसे कि आप जानते हैं शेफ की लाइफ में जनरली लेट नाइट बहुत होते हैं, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में आने का समय है, जाने का कोई समय नहीं है। तो उस समय पे आपकी फैमिली ने डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले किया, बिकॉज विदाउट फैमिली सपोर्ट ये सब नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आप अपनी फैमिली को इस कार्यक्रम में इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, वुड यू लाइक टू से समथिंग फॉर योर फैमिली? या, थैंक यू वेरी मच सुनीता, थैंक यू वेरी मच। ऑल 3 kids ऑफ माइन जो बहुत समझदार हैं, उनके सपोर्ट के बिना मैं हो ही नहीं पाता। मतलब वॉट एवर आई एम टूडे इज 100% बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइसेस दैट दे हैव डन। आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स हु बिलीव्ड ऑन मी। आई एम थैंकफुल टू माई फ्रेंड्स like you who have believed on me. I think it is all about that. और मुझे लगता है कि अभी भी मैं सीख रहा हूँ। अभी भी मैं जहाँ बाहर जाता हूँ तो एक अच्छी एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाता हूँ। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे वो बैलेंस अपने लाइफ में you create that balance. So I'm really thankful, and of course I'm really thankful to God, जो कि इन सब चीज़ों को, मेरे जो लोग हैं जो कि मुझे हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं, they are absolutely source of big inspiration in my life, and I think what I am today is because of them. Awesome. अब बहुत सी लेडीज का आज दिल भी टूट गया, जिनको लगता था कि शेफ तो अभी नए हैं, जवान है। सो ही हैज 3 kids एंड फैमिली। एंड मैं ये सवाल अपने इंटरव्यू में सबसे इसीलिए पूछती हूँ शेफ, क्योंकि हम ना जो सामने है, जो सेलिब्रिटी है, ये जो एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल है, उनकी तो तारीफ कर लेते हैं। Correct. लेकिन हम ये नहीं देखते कि उनके पीछे उनके घर वालों के बिना ये नहीं हो पाता था। That is why I always ask my guests to always thank their family. No, I think we should definitely. That is very important to thank the family. Yes. Without them, I don't think so. Any chef. Nobody, sir, not chef. Anybody. Yeah. तो आपके जो बच्चे हैं, क्या आप चाहते हैं कि उनमें से कोई आपकी ही डोमेन पे जाए, या यू आर ओके कि वो अपने करियर को अपने आप चूज करें जैसे आपने किया? Yeah, I'm okay with whatever they want to choose. The thing is they should have fun. I'm enjoying my time. So I think they should also enjoy their time. If they want to become chef, you're most welcome. If you want to become something else in the life, but first and foremost, it is very important to be a good human being. Very good. अगर आप एक अच्छे इंसान बन गए, सब बन जाता है। और अभी एवेन्यूज बहुत ओपन हो गया, बहुत तरह के अपॉर्चुनिटीज आ गए हैं। तो जो भी करो अच्छा करो, दैट्स इट। कीप इट सिंपल। तभी बोलते हैं, ये एक शेफ के इंटरव्यू में देखिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लेसन्स मिल रहे हैं, आपको पेरेंटिंग के गोल्स मिल रहे हैं। तभी कहते हैं हर इंटरव्यू को आप बारीकी से अगर देखेंगे, आपको आपकी जिंदगी के लिए बहुत से टिप्स मिलेंगे। तो शेफ, अब आगे चलते हैं। आपका जो इनोवेशन के प्रति इतना डीप पैशन है, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? डू यू हैव समथिंग व्हिच we will get lucky to reveal on this show of Chai with Payal at Krishi Jagran to the audience? Yeah, I think I'm gonna write my book. I think this is very, very important for me to actually, write about, my, entire thing what I have done till now. And I think book is the biggest inspiration for anyone. So this is what is immediate. But of course, I'm going to go back to Rani, and I really want Rani to achieve Michelin star. This is what the near and dear goal. Amazing. हम सब बड़े हुए हैं, कोई तरला दलाल का शो देख के, कोई शेफ संजीव कपूर का शो देख के, टीवी में शो देख के हम सब ने सीखा। अभी भी आजकल के शोज में भी हम मास्टर शेफ कॉम्पिटिशंस देखते हैं। तो आप आज की यूथ के लिए या आज की लेडीज के लिए आपकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज है कि हर कॉम्पिटिशन में एक मौका शायद उनके लिए खुल सकता है? क्योंकि बहुत लोग आजकल बोलते हैं कि इतने शोज हो रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? I think you should participate, यार। This is very, very good. I mean, don't go. But एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा अब नहीं है। आप जाओ, जीतने के लिए जाओ, बहुत इम्पोर्टेंट। मुझे याद है मेरा टाइम जब मैं आयरन शेफ के लिए जा रहा था, which I just want to add. And let me also tell the name of the guy. He said, Sid Sehgal, he owns Indus Bangkok, which is a Michelin-rated restaurant. And he called saying that, Nishant Chef, I want to call you and be part of this Irish chef and challenge the other chef
but I don't want you to come. I don't want you just to come and participate. I want you to come and win the race. Awesome. ये इम्पोर्टेंट, जब आप जाओ तो उस भावना के साथ जाओ कि जीतना है भाई, ये जीतना ही है, और उस जीतने के लिए पहले जीतना है, उसके बाद उसके लिए क्या करना है वो आप करो। नीचे से मत सोचो कि गए और उसके बाद ये बनाना है, सोचो मैं जीत गया, अब मैंने ये बनाया तो इसलिए मैं जीत गया। अब उसको धीरे धीरे करके उसको अगेन डाइसेक्ट इट, एंड देन उसके लिए आप सोचो कि आपने कहाँ से क्या क्या करना है। लास्ट में आप घर से उस प्लेट को लेके निकल रहे हो या वो एंथू के लिए निकल रहे हो, उसके लिए आपको रात को सोना नहीं होगा, उसके लिए आपको रील्स कम देखने होंगे, उसके लिए आपको पेन लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको फैमिली से अलग रहना पड़ेगा, वो सब चीज करना, उसके बिना सक्सेस मिलने वाला है। कितनी सुंदर बात शेफ आपने कही है। आजकल लोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सब कर रहे हैं, हम भी करते हैं, लेकिन ये जो आपने बात कही मैं भी अपनी लाइफ में इसको फॉलो करूंगी कि करो तो जीतने के लिए। Payal, did you hear about Shah Rukh Khan's latest YouTube video that he has said? नहीं शेफ, बताइए क्या उसमें शाहरुख खान ने ये बोला कि यार सक्सेसफुल बनो लाइफ में, और शाहरुख खान ने उसमें बहुत कैटेगरी के एक पॉइंट बोला है कि मैं इतना शाहरुख खान बन भी गया पर फिर भी मैं अभी पेन लेता हूँ। तो रिक्लाइनिंग सीट्स होते हैं और उनको रिक्लाइन भी नहीं करता है। बोलता है मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता हूँ, आई डोंट रिक्लाइन माई सीट जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट पेन। आपको पेन लेना पड़ेगा लाइफ में टू बिकम सक्सेसफुल। आई एम गोना सेंड इट टू यू, please do have a look. I will surely. Even if he has achieved so much, he still has quoted saying this is what he did. सर मुझे शेफ आपकी ये बातें सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और वही मैं सबको बोलना चाहती हूँ, जिंदगी में जहाँ भी पहुँच गए ये मत सोचो आई हैव अराइव्ड, नेवर फील यू हैव अराइव्ड, करते जाइए, क्योंकि जिंदगी बोलते हैं ना, इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन एंड यू हैव टू बी ऑलवेज रेडी फॉर द मैराथन। शेफ, इतने सारे रेस्टोरेंट, इतने सारे एक्सपीरियंसेस, कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसके लिए आप बोलेंगे कि आपकी जिंदगी में वो उस एक इंसिडेंट ने एक मार्क छोड़ दिया हो? अगर कोई ऐसा इंसिडेंट है तो हमसे शेयर करिए। एक इंसिडेंट ऐसा है कि मेरे को जाना था कुन्नूर, ओके, एंड आई गेव वर्ड टू दिस गाय दैट आई एम गोना कम एंड कुक फॉर यू, ओके। इट वाज अ मैसिव फंक्शन एंड यू कांट इवन इमेजिन, आई हैड 103 फीवर, ओके, एंड I was like, God, 103 फीवर है और जाना भी है, ओके, अब जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए। So I believe me, Payal, I thought that if I don't go, then can you imagine what is gonna happen there? और मैं travel किया 103 फीवर। I went to Chennai and then I went to Kannur from there, and I cooked. Believe me, it is God's grace, it is Guruji's grace that I was absolutely fine by the time I landed in that place. और मेरे तो मतलब मैं सोचता भी हूँ तो मुझे समझ भी नहीं आता, but you know why I did it? Because I committed. Because मुझे पता था कि मेरे नहीं आने से इतना बड़ा फियास्को हो जाता बेचारे का। टोटल whatever celebration that he promised to his guests would have gone in vain. So I think that incident is very उसको मैं सोचता हूँ हमेशा कि यार जब मैं उस टाइम ऐसे कर सकता था तो कोई क्या दिक्कत है। आपने जो कहा, डेफिनेटली गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है, और बोलते हैं जो इंसान खुद एक कदम आगे बढ़ाता है पूरी कायनात उसके लिए खड़ी हो जाती है। बोलते हैं चाहे वो गुरुजी हो या स्पिरिचुअल एनर्जीज हो या हमारे गाइडिंग एंजल्स हो। बहुत खूबसूरत है। सो अब मैं सिर्फ ये बोलूंगी लास्ट में कि जो आजकल के बच्चे जिनको लगता है सब कुछ बहुत ईजी है, जैसे कि आपने कहा उनको लगता है रील्स देख लिया और सब कुछ सीख लिए, वो रील में ही खाना बना भी लेते हैं, खा भी लेते हैं और सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। उनको आप एक मैसेज लास्ट क्या देना चाहेंगे कि नहीं, आज भी मेहनत की वैल्यू है? Yeah, reel, as I said, there is no problem in watching, okay? और ये इम्पोर्टेंट है कि आप रील देख के कितना इंस्पायर हो रहे हो। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि रील देख के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इज नॉट गोना कम बैक, ओके। So it is very very important to get your basics in place, to put your stamping, as I said before. I mean, बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी। I think more than 60,000 students are passing every year as in hotel management. अब कैसे करोगे आप? जब तक आप अपना करियर, अपनी नीश नहीं बनाओगे अपने लाइफ में, तो आपको फिर you will be lost in crowd. So I think
एंड देयर इज सो मच हैपनिंग इन आवर कंट्री। आप देखो फूड के बारे में मिलेट्स ईयर सेलिब्रेट किया हम दुनिया को दिखा रहे हैं, दुनिया को जागरूक कर रहे हैं। हमारा एशियन आयुर्वेद हमें इतना ज्यादा सिखा रहा है, लोगों को पता नहीं इंडिया इज रिच इन सिविलाइजेशन, इन रिच इन हेरिटेज, रिच इन फूड। उसके बारे में आपको काम करने जो, बट बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। थैंक यू शेफ। हमेशा मैं जब कोई भी एपिसोड या कोई गेस्ट का इंटरव्यू लेती हूँ, मैं उसमें से 2 या 3 पॉइंट्स निकालती हूँ जिनको मैं रिपीट करती हूँ। बट आज का ये एपिसोड मुझे नहीं पता था खाने के ऊपर ये एक एपिसोड इतना नॉलेजेबल होगा, जिसमें पेरेंटिंग बोलिए, एंटरप्रेन्योरशिप बोलिए। मेरे पास सिर्फ 3 अगर मैं बोलूँ लेने को लिए कुछ है। मैं खुद जाके ये एपिसोड वापस देखूंगी जब ये लाइव होगा। तो आप सब भी इस एपिसोड को एक बार नहीं बार बार देखिएगा, क्योंकि खाना बोलते हैं ना कि हमारी संस्कृति में है अतिथि देवो भव। हम किसी को भी जब घर बुलाते हैं अच्छा खाना खिलाते हैं, बट वो शेफ जो पीछे खड़े होके इस पूरी चीज को कर रहे हैं, बहुत बहुत शेफ सैल्यूट टू यू। Thank you very much, Payal. And also Payal, end is the new beginning in life. Yes. हमेशा याद रखना, आपका कोई चीज एंड नहीं होता, हमेशा जो एंड होता है वही नया बिगिनिंग। क्या बात है शेफ, आप हमें इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, ऐसे लगता है ये एपिसोड को हम खत्म ही ना करें, बट हमें यहाँ रोकना होगा। सो टू ऑल द ऑडियंस who is watching चाय विद पायल on कृषि जागरण, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। Stay tuned, we'll keep coming up with so many amazing episodes. So chef, before you go, you are known as the millet chef, आपको तो millet chef भी बोलते हैं। कृषि जागरण में हमारा एक ये MFOI है जो कि मिलियनियर फार्मर ऑफ इंडिया, एक बहुत बड़ा एक इवेंट हर साल होता है। दिसंबर 2023 से इसकी शुरुआत हुई। मैं आपको एक छोटा सा तोहफा देना चाहूंगी। Thank you very much, Payal. God bless you. Thank you. And चाय विद पायल में बिना चाय के तो हम आपको जाने नहीं देंगे। सो शेफ, ये एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से। इस शो में जब आप आए बिना चाय के तो जा ही नहीं सकते। Thank you very much, Payal. सो थैंक यू वंस अगेन। प्लीज वॉच दिस शो, और ये शो एक बार देखने से मन नहीं भरेगा, सो बार बार देखिए।